Hello everyone, welcome back to EduMast channel. Well, in the last class we have started with the 8th standard syllabus, that is crop production and management. So what did we learn in the last class? So we have seen what are crops and what are the types of crops. So we'll just recall what we have studied. So we have studied about crop definition, like crop किसे कहते हैं, और what are the types of crops, that is kharif crop and rabi crops with their examples. Okay children, so today we shall be learning the main important part of this lesson, that is agricultural practices. Before going with this lesson, let me discuss with you something. You know very well, like agriculture or production of the crop is a very traditional method that is taken place in our country. So बहुत से methods है and most of the farming is been done in our country, you all know very well. अगर आपके घर में, in case if you are having the elderly people at your home, it might be your grandparents, थोड़ा आप उनसे पूछताछ कीजिए कि पहले के ज़माने में क्रॉप्स कैसे उगाया जाता था. सो हाउ डिड दे प्रोड्यूस द क्रॉप्स. शायद वो खेती में काम भी कर चुके होंगे, और यू माइट हैव ऑल्सो गॉन नाउ टू द फील्ड्स एंड जस्ट सीन. इफ यू डिस्कस विद देम, यू विल कम टू नो लिटिल बिट द डिफरेंस इन द क्रॉप प्रोडक्शन. पहले के ज़माने में जो क्रॉप उगाया जाता था वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड होता था, बिकॉज वहाँ पे कोई अर्जेंसी नहीं थी. बट नाउअडेज वॉट एवर द फार्मर्स आर अप्लाइंग, दे आर ऑल अप्लाइंग द मॉडर्न मेथड्स और मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन देयर एग्रीकल्चर. व्हाई इज द डिफरेंस हैपनिंग? पहले क्यों ट्रेडिशनल मेथड में करते थे और अभी क्यों मॉडर्न मेथड्स में शिफ्ट हो गए? सो देयर इज ओनली वन solution for this, or only one reason is population. You know very well, जैसे ही हमारे इंडिया में population speedily grow हो रहा है, हर किसी को भोजन खाना बहुत ज़रूरी होता है. So everyone requires the food, isn't it? They require healthy food to fulfill their needs. So farmers are also shifting for the agriculture modern methods, जिससे हम लोग जल्द से जल्द crops उगा सके and we can fulfill the needs of every people. Okay children, so now we shall see what is the importance of agriculture practices. Agriculture practices में क्या क्या होता है, let's have a glance. Okay, so the first method in the agriculture practices is preparation of the soil. Second is sowing. Third is adding manure and fertilizer. Fourth is irrigation. Fifth is protection of or protection from the weeds. Sixth is harvesting. And seventh is storage. ठीक है, these are the 7 methods that basically a farmer applies in his agricultural practices. Now let us see one by one what exactly farmers do with these practices. How do these practices are being maintained in the field? Let us see. So the first point is preparation of the soil. Preparation of the soil in the sense what? Preparation in the sense हम soil को प्रिपेयर करते हैं. किस लिए प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम उसमें सीड्स डाल सके और पौधा तैयार कर सकें. Isn't it? प्रिपरेशन कैसे होता है? सो व्हाई द प्रिपरेशन इज सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, और द फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. प्रिपरेशन इन द सेंस वी आर गोइंग टू लूज द सॉइल हियर. सॉइल को क्या किया जाता है? लूज किया जाता है. सो व्हाई डज द फार्मर लूज द सॉइल? सो वन थिंग इज, if we lose the soil, he can aerate the field. Aerate in the sense, soil या बीज को जब हम बोते हैं तो it gets enough space so that the roots can penetrate inside the soil. Second thing is unwanted particles. soils में जो पहले ही दबे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं. ओके, तो जो बड़े बड़े मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं उसको हम ब्रेक करते हैं. Then if he levels, it will be very easy for a farmer to sow the seeds in a correct manner. इसीलिए क्या करते हैं फार्मर? फर्स्ट ही prepares the soil, he loosens the soil, he levels the soil. So what does a farmer uses to loosen the soil or to prepare the soil? Let's see. So here he is using, first let us know the traditional methods that the farmer used to use earlier. He used to use the plow and hoe. Plow किसे कहते हैं? So you know very well, the farmers earlier they used to use the cattles. So along with the cattles एक wooden rod होता था जिसे हम plow कहते हैं, जिसे खेती को लूज किया जाता था.
When we are loosening the soil, what happens is, here if you see the traditional method, it takes more time to lose the soil because cattles, तो मैनुअली यहाँ पे काम किया जाता है. मैनुअली काम करने से क्या होता है, यहाँ पे टाइम बहुत ही कंज्यूम हो जाता है. सी here they are using the energy of the cattle, then men labors are been required, isn't it? So time consumption is happening, तो बहुत टाइम ले लेता है. अगर वही हम मॉडर्न मेथड में जाएंगे, सो लेट अस सी व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स हियर. फॉर एग्जांपल कल्टीवेटर और hoe. Cultivator is like a metal which has been used nowadays, okay, which is having the sharp point which can lose the soil at a time without any difficulty. And cultivator is just a tractor. आजकल आप देखते हैं खेतों में कि लूज सॉइल लूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रैक्टर यूज किया जाता है. ट्रैक्टर के पीछे क्या रहता है, एक बड़ा सा रॉड रहता है एंड इट इज हैविंग द हुक्स लाइक अ सिकल लाइक अ स्ट्रक्चर्स विच कैन लूज द सॉइल एट अ टाइम इन अ मेजर पार्ट. जहां पे हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में कैटल एक लाइन करता है, एक लाइन से फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ऐसे शुरू होता है. लेकिन अगर वही हम ट्रैक्टर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ही 1/4 पार्ट ऐसे करते करते फार्मर जो होता है ही कैन फिनिश द लूजनिंग ऑफ सॉइल विद इन 2 or 3 days. तो व्हाट इज द डिफरेंस लाइक यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड और इन द मॉडर्न मेथड इज, ट्रेडिशनल मेथड में हम देखेंगे लेबर यूज कर रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, और यहाँ तक कि कैटल्स की एनर्जी यूज हो रही है एंड प्लस टाइम कंजम्पशन हो रहा है. बट इफ यू सी द मॉडर्न मेथड्स, व्हाट विल हैपन इन द मॉडर्न मेथड इज, ट्रैक्टर इज अ मशीन, only one person is looking after the tractor, he is driving, and as well जो पीछे का जो मशीन रहता है, कल्टीवेटर जो रहता है, वो एक साथ में बहुत सा लैंड लूज कर देता है. सो हेयर एनर्जी इज बीन सेव्ड एज वेल एज टाइम कंजम्पशन ऑल्सो बीन सेव्ड. सो टाइम जो होता है बहुत ही लेस यूज हो जाता है, isn't it? तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मेथड में और मॉडर्न के मेथड में. आजकल हम देखेंगे कहीं भी आप जाओगे या फिर खेतों में देखोगे तो कल्टीवेटर हमेशा पाओगे. So let us move to the next part, that is sowing. What is sowing? Putting the seeds into the land, isn't it? तो ऐसे ही हम जाके देखते हैं कि क्या फार्मर ऐसे ही सीड्स लेकर ऐसे ही डालते हैं? No. The farmer first selects the seed. So how is the farmer selecting the seeds? उसको भी चाहिए ना कि मैं अच्छे से बीज बोऊं और अच्छे से पौधे आए, फिर से मुझे अच्छे से फ्रूट मिल जाए उसका, ताकि मैं अच्छे के दामों में बेच सकूं, isn't it? So farmers also is thinking in a very modern way nowadays. So first what does he do is, the farmer selects the seed. So how is the farmer selecting the seeds? Usually आपके घरों में भी आपकी मम्मी वैसे करती है. आपकी मम्मी क्या करती है, अगर आपकी मम्मी किसी मतलब मूंग, एग्जाम्पल आपकी मम्मी कल मूंग बनाने वाली है, मूंग की दाल बनाने वाली है, तो आपकी मम्मी क्या करती है, पहले मूंग को भिगोती है. भिगोने से क्या होता है, when she puts into the water the green grams, what does it happen? The unwanted seeds or the damaged seeds, whatever are there, they are floating up, isn't it? And the good quality seeds are always settling down. तो मम्मी क्या करती है, जो ऊपरी जो सीड्स आए रहते हैं उसको फेंक देती है, और जो नीचे के जो सीड्स रहती है उसको भिगोने के लिए रख देती है. So this is what a farmer is applying. Before putting the seeds into the soil or sowing the seeds into the soil, he washes and soaks into the water. So after soaking into the water, what happens is, the unwanted seeds or the damaged seeds or the good not good quality seeds are floating up. Those seeds are being taken out, and the good quality seeds which are settled down are being used for the sowing purpose. Now again in this method we are seeing the traditional method and the modern methods. So first what a farmer is to do to sow the seeds, he is to do manually. पहले कैटल्स का हेल्प लेकर मैनुअली सीड्स को सोया जाता था. लेकिन अब nowadays what we see is, nowadays they are using the machine that is called as seed drill. Seed drill एक फनल टाइप का मशीन है जहाँ पे सीड्स को डाला जाता है. दे रन द ट्रैक्टर वेयर सीड्स ऑटोमेटिकली फॉल इन इक्वल प्लेसेस, isn't it? So this is the benefit of modern methods that we see for the sowing of the seeds. Let us move to the next part, that is adding manure and fertilizers. Very very important. So before knowing, let us know what are manure and fertilizers.
अभी एग्जाम्पल ले लो, आप थोड़े से वीक हो गए हो, बीमार पड़ रहे हो, शायद ही आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, अरे आप थोड़े से वीक हो गए हो भाई, थोड़ा सा बहुत टॉनिक ले लो, isn't it? The doctor prefers you for the tonic. So when you take the tonic, what does it do? It boosts your energy. You feel like eating more, you get energy and you work actively, isn't it? तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? These are nothing else but these are like extra tonic that we are adding to the plants so that they can grow in a healthier way. Let us know what is the difference between manure and fertilizer. Manure is usually a organic, like tonic, which has been also prepared in the fields itself. जो भी वेस्ट रहता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम पेड़ काटते हैं उसके शाफ्ट जो रहते हैं, सो द स्टॉक्स और द शाफ्ट दैट आर बिन रिमेनिंग एंड द काउ डंग, और जो किचन वेस्ट वगैरह रहता है उसको हम डिग करके उसको मैन्यूअर प्रिपेयर करते हैं, इजंट इट? एंड व्हाट इज दिस फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स आर कंप्लीटली इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल से बनाया जाता है. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? नाउअडेज, अर्लियर in the traditional way, farmers used to use manure. He used to prepare the manure in his own fields, used to apply in the fields so that the farmer can give a healthy plants. Okay. Fertilizers अभी जो हम use करते हैं वो quick result देता है. Now let me tell you this brief you about the differences. Now manure as usual it is a organic tonic or organic medicine that has been given to the crops. Then it does not have any side effect. The growth is little bit slow. It is very rich in humus. Humus बहुत अच्छा produce करता है. But if you see that only the fertilizer is inorganic. Factories में बनाया जाता है. Okay, it gives a very quick result, but it has side effects too. Fertilizers ज़्यादा या कम डालने से पौधों को नुकसान हो सकता है. सो हियर द फर्टिलाइजर्स दैट यूजुअली अ फार्मर यूजेस NPK. तो ये NPK होता क्या है? N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम. सो यूजुअली द फर्टिलाइजर दैट इज बीन यूज्ड इन द फील्ड्स इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं. सो हियर व्हेन द फार्मर puts the fertilizers, he gets the crop production in a very less time, that is quickly produce होता है. Okay, so let's move to the next part, that is irrigation. So irrigation किसे कहते हैं? What is irrigation? So watering the plants in the equal intervals of time is called as irrigation. यहाँ भी हम ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड देखेंगे. तो ट्रेडिशनल मेथड में पहले क्या होता था? अगर आप अभी भी किसी गांव में जाओगे तो क्या देखोगे? नदी के आजू बाजू में जो खेत उगे होते हैं, पानी कहाँ से लिया जाता है? डायरेक्ट नदी से लिया जाता है, isn't it? So there are many traditional methods, for example like moat, chain pump, dekli, rahat. These all are the traditional methods that is used. जैसे बोर यूज किया जाता है, या तो फिर डायरेक्ट नदी से या तो फिर वेल से डायरेक्ट पानी को लेकर. पहले के ज़माने में कैटल यूज़ किया जाता था, जो पंप, जैसे हम वेल देखते हैं, वेल को जैसे व्हील रहता है वहाँ से पानी लेकर हम खेतों में डाला करते थे. लेकिन इफ यू सी द अर्लियर वेज और द ट्रेडिशनल वेज, देयर वाज समथिंग लाइक अनइक्वल वाटर इज टू रीच फॉर द प्लांट्स. द होल फील्ड इज टू नॉट गेट द इक्वल वाटर. अदर देन दैट even there is to be lot of wastage of water. ठीक है, इसीलिए अभी फार्मर क्या करते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रो होता है, पानी की जरूरत हर किसी को लगती है, इसीलिए एग्रीकल्चर में भी क्या किया गया है, दे आर सेविंग द वाटर. सो दे आर मूविंग टू द मॉडर्न मेथड्स, दैट इज वन इज दे आर यूजिंग द स्प्रिंकलर्स एंड वन दे आर यूजिंग द ड्रिप सिस्टम. सो व्हाट आर स्प्रिंकलर्स? स्प्रिंकलर्स आप देखते हैं, अगर आप खेतों में जाओगे तो एक लंबे पाइप रहते हैं जिसको नोजल रहता है और ऐसे घूमते रहता है. सो व्हाट विल हैपन इफ सच सिस्टम्स आर बीन यूज्ड? सी अ फार्मर विल पुट ओनली वंस, ही विल ऑन द स्प्रिंकलर्स. एक ही वक्त पे
पूरे फील्ड्स को पानी मिलता है एंड दे गेट इक्वली। यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होगा, प्लस यहाँ पे कैटल्स का यूज़ नहीं होता है, लेबर्स का यूज़ नहीं होता है, या फिर टाइम कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता है। बट वेर एज इफ यू सी नाउ इन द स्प्रिंकलर्स एवरीथिंग इज अगेन अपोजिट, एनर्जी सेव होता है, every plant is getting the equal amount of water and there is less consumption of water done here. Same even in the drip system. Drip system also is mainly used for the fruits, ज़्यादातर grapes जहाँ पे grow करते हैं वहाँ पे drip irrigation यूज़ किया जाता है। ये भी पाइप से पानी छोड़ा जाता है जहाँ पे उनको छोटा छोटा नोजल रहता है। So time is being put up there where every plant gets the equal amount of water. ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है या ड्रिप सिस्टम है, अगर हम इसको यूज करेंगे सो मैक्सिमम वी कैन सेव 70% ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, देन सो इरिगेशन ऑल्सो प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स बहुत ही यूजफुल है जिसे हर कोई फार्मर यूज कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सो ये वीड्स क्या है भाई? व्हाट आर दिस वीड्स? Weeds are nothing else but they are unwanted plants that are grown along with the main crops. सोचो आप मैन्योर डाल रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, अच्छा सा सॉइल में ह्यूमस है, अगर कोई अनवांटेड प्लांट आकर उसमें बस जाएगा तो मेन क्रॉप को क्या मिलेगा भाई? सो मेन क्रॉप्स को कुछ नहीं मिलेगा। सो मेन क्रॉप्स आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज बीन कंज्यूम्ड बाय द वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। तो वीड्स को निकालना बहुत जरूरी है। So again here same traditional methods and modern methods are being used. So traditional method में पहले क्या होता था? weeds को कैसे निकाला जाता था? Manually, labors use किया जाता था। So they used to use the labors to remove the weeds. They used to remove by hand, that is खुरपी जिसे हम बोलते हैं, sickle. So उससे हम निकालते थे। So क्या होता था यहाँ पे? एनर्जी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड प्लस मेनी पीपल आर बीन यूज्ड फॉर removing the weeds from the fields. But again the farmer is moving for the modern methods, that is removing the weeds through using weedicides. Those are made again from the chemicals. Okay, for one example here is 2,4-D that has been given in your textbook. So what does this 2,4-D mean? 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ओके, ज़्यादातर कभी कभी आपके टीचर जब टेस्ट लेते हैं तो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि 2,4-D का मतलब क्या होता है। सो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड होता है। तो ये जो वीडिसाइड होता है दे आर बीन स्प्रेड इन द फील्ड्स बट विद द प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं? ऐसे ही जाके उसको स्प्रे नहीं करते। सो दे यूज द मास्क, दे यूज द जैकेट सो दैट बिफोर व्हेन दे आर स्प्रेइंग दिस इन द फील्ड्स दैट स्मेल शुड नॉट एंटर इन योर बॉडी एंड यू शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी diseases. ठीक है, then moving to the next part, that is harvesting. Harvesting अभी भी इसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड यूज होता है। सो हाउ द अर्लियर द फार्मर यूज टू डू द हार्वेस्टिंग? अगेन बाय सिकल, मैनुअली। ओके, सिकल यूज किया जाता था, हाथों से काट दिए करते थे, एंड दे यूज्ड टू यूज Nowadays they are going for the modern method that is called as threshing and winnowing. Threshing क्या है? Threshing का इसका मतलब होता है जब हम पौधे काटते हैं या तो क्रॉप्स काटते हैं, वहाँ पे जो सीड्स होता है सेपरेट हो जाता है और जो अनवांटेड प्लांट्स मतलब जो यूज नहीं होता है जैसे शाफ्ट जिसे हम कहते हैं वो बाहर रखा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। यहाँ पे मशीन यूज किया जाता है, इसे कहते हैं कंबाइन। अभी फार्मर्स जो होते हैं कंबाइन का मशीन यूज कर रहे हैं जहाँ पे सीड्स और शाफ्ट दोनों को इक्वली एक ही टाइम पर सेपरेट किया जाता है। देन वन मोर मेथड इज देयर दैट इज विनोइंग। विनोइंग को क्या करते हैं? जैसे हम सीड्स काटते हैं तो बाहर एक जगह देकर हम क्या करते हैं? सीड्स को ऐसे धूप में मतलब या हवे में उड़ाते हैं। तो क्या होता है? जो अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं सीड्स से वो बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। जो लाइटर वाले होते हैं, जो हैवी जो सीड्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। So these are the methods that are being used in the harvesting. So let's see the next part, that is storage. After harvesting we shall see what is the next step. So next step होता है अभी क्रॉप्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, हमने उनको काटा है,
काटने के बाद में फार्मर क्या करते हैं? सो फार्मर स्टोर्स द ग्रेन्स और स्टोर्स द क्रॉप्स. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरिंग अगेन, लाइक ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज, ऐसे मेथड्स होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द फार्मर व्हाट ही इज ग्रोइंग इन द फील्ड. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली स्टोरेज क्या होता है. स्टोरेज मतलब वी आर स्टोरिंग द ग्रेन्स इन अ प्रॉपर वे. जिस तरह से हमने अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखा है कि उसको कैसे सीड सो करने के बाद में हार्वेस्टिंग तक क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, वैसे स्टोरेज में भी कुछ प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं. लेकिन हाउ एंड वेयर इज द फार्मर स्टोरिंग द ग्रेन्स? फर्स्ट लेट अस सी दैट. सो द स्टोरेज, द फार्मर इज स्टोरिंग the grains in the gunny bags. So what are these gunny bags? जो bags होते हैं ना, थोड़ा air passage होना चाहिए उसमें. So those bags requires air entering inside, because अगर हम tight bags में grains को store करते हैं तो क्या होता है? So usually they produce the heat, जिससे moisture produce होता है. moisture produce होने से क्या होता है? fungus attack हो जाता है, isn't it? They start spoiling. तो grains easily can spoil in the tight bags. So usually a farmer uses the loose gunny bags, okay, जिसे जूट से प्रिपेयर किया जाता है. तो वो वाले बैग्स प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे ग्रेन्स हेल्दी और फ्रेश रहे. ओके, देन वेयर आफ्टर पैकिंग दिस इन द गनी बैग्स, वेयर इज द फार्मर स्टोरिंग एग्जैक्टली? वेयर इज ही कीपिंग दोज ग्रेन, लॉट ऑफ ग्रेन्स? सो ही इज कीपिंग इधर इन द silos और granaries. Silos and granaries are nothing else but the godown like buildings where the grains are being stored in a very protective manner. तो ये जब गोडाउन्स हम देखते हैं तो कैसे होना चाहिए? हाउ दिस इट शुड बी? दे शुड बी वेरी लाइक क्लीन, हाइजेनिक. दे शुड यूज द पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं अभी हम किसी किराने शॉप में जाते हैं तो क्या देखते हैं? ज़्यादातर वहाँ पे चूहों का वास देखते हैं या फिर कॉकरोचेस देखते हैं. तो उसको दूर रखने के लिए गोडाउन्स में क्या यूज किया जाता है? पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, जहाँ पे पेस्ट को दूर रखा जाता है, isn't it? और इधर वन मोर अल्टरनेटिव थिंग इज दैट दे यूज द ड्राई नीम्स. तो नीम के जो पत्ते होते हैं जो ड्राई वाले, उसको वहाँ पे रखा जाता है ताकि कोई कीड़ ना लगे या तो कोई पेस्ट आके वहाँ पे उनको खा ना सके, isn't it? This is all about the agriculture practices. So just we'll have a quick review about what are agriculture practices. So first step is preparation of the soil, second is sowing, third is adding the manure or fertilizers, then irrigation, then weedicides, then harvesting, the last part is storage. This is all about agriculture practices that usually a farmer uses in his fields. Now you know very well in this world there are two types of consumers. Either they consume only the plants like such as crops, or we can say like vegetables or fruits, but there are even people who will consume even the animals also, like we say carnivores people. So omnivore people, we are omnivores, we eat both vegetables as well as animals. ठीक है, तो अभी animals जो रहते हैं क्या वो ऐसे ही हमें मिल जाते हैं? नहीं. So the process that to maintain the animals is called as animal husbandry. जैसे एक फार्मर अपने फील्ड्स में सभी प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, वैसे ही इस एनिमल्स को भी देखने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट आर दोस प्रैक्टिसेस यूज्ड टू लुक दोस एनिमल्स? तो एनिमल्स को ब्रीड करने के लिए, रेयर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सो दे सी दैट दे शुड हैव अ हेल्दी प्लेस, लाइक दे शुड हैव क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन प्लेस, देन उनको हेल्दी फूड दिया जाता है, उनको वेटरनरी डॉक्टर का लाइक ट्रीटमेंट दिया जाता है. Isn't it? For them also they have been given the extra like tonics or medicines to remain healthy. Okay, so यहाँ पे हम देखेंगे कि they use the very modern methods. Modern methods use किया जाता है कि उनको कैसे डेवलप किया जाता है. So let us see some of the examples of animal husbandry. So here we are having sericulture, poultry, pisciculture and apiculture. तो क्या कल्चर और क्या यहाँ पे रखा जाता है? Sericulture is nothing else but the silkworms. So you know very well like that is also a production. Silks को जहाँ पे रेयर किया जाता है सिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. Then we are having next poultry, isn't it? Poultry you have exotic breeds like hens for producing of eggs and chicken. So most of the people love chicken and eggs to eat. Then we are having the pisciculture, that is fish. फिश को भी रेयर किया जाता है, उनको भी
खाना वगैरह डाला जाता है उसको ज़्यादातर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सो इट कैन कम इन टू द मार्केट. देन नेक्स्ट इज एपीकल्चर. एज यूजुअल हनी बीज, you know very well, very healthiest food, that is honey. So we extract honey from the apiculture. So here we have seen so many ways or methods in the animal husbandry. I hope this lesson you all have understood, you have enjoyed this lesson. Here don't forget to like, share and subscribe our #edumast channel. Till then, have a great day.